Assalamu alaikum students. This is International Islamic University, Islamabad Schools, Sahiwal campus. Science, grade 4, unit number 2, lecture number 3. Plants life cycle. General instructions. Students, bring your student book and classwork notebook open and keep it open during lecture and write day, date, topic and index properly. Listen to your teacher attentively and write all the important points said by the teacher on your classwork notebooks. Plants life cycles. Open page number 24. Life cycle of a flowering plant, page number 24. Life cycle. What is a life cycle? The stages of living things through which it passed during its life are called a life cycle. लाइफ साइकिल क्या है? एक लिविंग थिंग, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म और एक लिविंग थिंग अपनी पूरी लाइफ में जिन जिन स्टेजेस से पास करता है उनको हम लाइफ साइकिल कहते हैं. उसकी वो ग्रोथ फेज है. लाइक इफ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द flowers, or if we're discussing about the plants, so we'll start about the germination and then growth, pollination and then the adult plant formation. So all these stages are known as life cycle. So the stages of living things through which it passed during its life are called life cycles. Look at page number 24. Living things change during their lives. Most living things begin their lives small and then grow larger. अब यहाँ पे जो आपको बताई गई ये बात वो ये है कि जो लिविंग थिंग्स हैं वो अपनी थ्रू आउट द लाइफ चेंज होती रहती हैं. They begin their life as a small and then grow larger. वो स्मॉलर स्टेजेस से अपनी लाइफ को स्टार्ट करते हैं एंड देन ग्रोथ फेज उनका जो है वो स्टार्ट रहता है और वो दे ग्रो लार्जर. दे मेक डेवलप सर्टन फीचर्स एज दे चेंज इनटू एडल्ट्स. और जब जैसे ही वो एडल्ट प्लांट्स में चेंज होते हैं तो उनमें बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे फीचर्स नए आ जाते हैं. दे रिप्रोड्यूस टू मेक मोर लिविंग थिंग्स ऑफ द सेम काइंड. And when they become adult plants, they will reproduce and they form more of their own kinds. Eventually living things die, and then after their adult stage, after they reproduce, they die. The stages through which a living thing pass during its life cycle, during its life, are called as life cycle. यानी कि वो तमाम स्टेजेस जिनमें से एक लिविंग थिंग गुजरेगी वो उसका लाइफ साइकिल होगी. अब यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करने वाले हैं. Most living things start their life as small and then develop features as they grow and change into adults. Life cycle of flowering plant. अब यहाँ पे जो आपके पास एग्जांपल दी गई है वो एक pumpkin plant की दी गई है. A pumpkin plant is a kind of flowering plant. The life cycle of a pumpkin plant has several stages as shown in the diagram. Page number 24 पे आपको diagrams दिखाई गई हैं. यहाँ पे 1, 2, 3 and 4 पॉइंट्स में आपको 4 stages दी गई हैं. ऊपर कैप्शन में आपको कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आपने अपने अप्रोप्रिएट प्लेस पे जो है वो एडजस्ट करना है. सो यू हैव टू डू दिस एज योर होमवर्क. Pumpkin seed germinates under suitable conditions. Stem grow up and roots deep into the soil. अब यहाँ पे ये बताया कि जैसे ही सीड जर्मिनेट करता है suitable conditions मिलती हैं, warmth टेम्परेचर मिलता है, राइट अमाउंट ऑफ लाइट, वाटर एंड एयर मिलता है, तो प्लांट जो है सीड जर्मिनेट करना शुरू कर देता है. उसके जो रूट्स हैं वो डीप इनटू द सॉइल ग्रो होती हैं और जो उसका स्टेम है वो आउट ऑफ द सॉइल मूव कर जाता है. पंपकिन सीड जर्मिनेट्स व्हेन वाटर, ऑक्सीजन एंड वार्म टेम्परेचर आर प्रेजेंट. अ स्टेम ग्रोज अप एंड रूट्स ग्रो डाउन. Come to point number 2. A young plant grow which change into adult plant living having leaves. अब जो young plant है हमारे पास वो एक adult plant में change हो जाएगा और adult plant जो है उसके पास leaves होंगे, basically उसके पास flowers होंगे. अब flowers के जरिए से वो again pollination start करेगा. Pollination happens, pollen move from one plant to another. अब पॉलिनेशन कब होती है? जब पोलन जो हैं वो एक फ्लावर पार्ट से उड़ते हैं और दूसरे फ्लावर तक पहुंच जाते हैं तो पॉलिनेशन का प्रोसेस जो है वो हो जाता है. सम पम्पकिन फ्लावर्स मेक पोलन्स. अब कुछ पम्पकिन फ्लावर्स यहाँ पे, अब पम्पकिन की एग्जांपल दी गई है तो उसने कहा कुछ पम्पकिन फ्लावर जो हैं वो पोलन्स बनाएंगे. अदर फ्लावर्स यूज द पोलन टू मेक सीड्स. और जो दूसरे फ्लावर्स हैं वो इन पोलन्स को यूज करेंगे ताकि वो सीड फॉर्मेशन कर सकें. पॉलिनेशन हैपन्स व्हेन पोलन मूव फ्रॉम वन पम्पकिन फ्लावर टू अनदर. और पॉलिनेशन कब होगी? जब जो पोलन है वो एक पम्पकिन फ्लावर से मूव करेंगे दूसरे पम्पकिन फ्लावर तक. पम्पकिन इज अ फ्रूट मेड अराउंड a seed again starts to germinate. अब यहाँ पे जो फोर्थ स्टेज है आपके पास पेज नंबर 24 पे, द पम्पकिन इज अ फ्रूट मेड बाय द एडल्ट पम्पकिन प्लांट. जैसे हमने अपने प्रीवियस लेसन में डिस्कस किया था
कि जो सीड्स के अराउंड जो एक फ्रूट फॉर्मेशन होती है, बेसिकली this is to protect the seed, its inner material. So a pumpkin is developed here, an adult pumpkin plant developed. It contains seeds from formed after pollination. अब इसके पास वो seeds होंगे जो कि germination के बाद बने थे. The seeds can become new plants. अब ये seeds again, if they got the similar right suitable conditions, warmth, temperature, light, air, oxygen and right amount of water, they will germinate again, and in this way the whole life cycle starts again and again the new young plants are formed. Page number 25, life cycle of a conifer plant. Here we will discuss about the life cycle of a coniferous plants. Here the coniferous plants will develop cones instead of the flowers and they will make seeds. Look at page number 25. Life cycle of a conifer plant. Plant trees are a type of conifer. इनके जो pine trees हैं हमारे पास वो conifer plants की type हैं. Conifer plants grow cone instead of a flower to make seeds. अब यहाँ पे वो cones develop करेंगे instead of flowers. Conifer plants, a pine tree, need suitable conditions like water, air and warm temperature. A seedling grows from germinated seeds. अब यहाँ पे सीड को जर्मिनेट करने के लिए अगेन जो है वो सुटेबल कंडीशंस चाहिए, लाइक वाटर, एयर एंड वार्म टेम्परेचर एंड राइट अमाउंट ऑफ द लाइट, एंड देन अ सीडलिंग ग्रोज व्हेन द सीड जर्मिनेट. जैसे ही सीड जर्मिनेट करेगा राइट कंडीशंस की वजह से, तो जो सीडलिंग है वो उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी. ओके, कम टू पॉइंट नंबर 2. Over many years, the pine seedling grows into a tall adult tree. The tree makes small pollen cones and large seed cones. अब यहाँ पे बेसिकली आपको ये बताया गया है कि बहुत सालों के बाद जो पाइन सीडलिंग है वो एक टॉल एडल्ट ट्री में चेंज हो जाएगी, और जो ट्री है वो स्मॉल पोलन कोन्स डेवलप करेगा और लार्ज पोलन कोन डेवलप करेगा. अब जो स्मॉल पोलन कोन्स हैं वहाँ से पोलन ग्रेन्स ट्रांसफ़र होंगे लार्ज पोलन कोन्स तक, लार्ज सीड कोन्स तक. Smaller are pollen cones and the larger are seed cones. So smaller pollen cones से pollen grains move करेंगे large seed cones तक और वहाँ पे जाके वो seed formation करेंगे. And then in the point number 3, pollination happens. Seeds develop in seed cone which fall around to ground and favorable condition starts its life cycle again. पॉइंट नंबर 3 देखें, स्मॉल पोलन कोन्स मेक पोलन्स. अब यहाँ पे अगेन वही बात जो मैंने आपको पहले बताई कि जो स्मॉल पोलन कोन्स हैं वो पोलन को डेवलप करेंगी. विंड कैरीज द पोलन टू द लार्ज कोन्स. अब यहाँ पे जो फैक्टर बताया गया है कि कौन सा फैक्टर है जो कि इन पोलन्स का ट्रांसफर करवाएगा, तो यहाँ पे विंड डिस्कस किया गया कि विंड कैरी करेगा इन पोलन को लार्ज पोलन कोन्स तक लेके जाएगा और वहाँ पे जाके सीड फॉर्मेशन होगी. ऑन द पेज नंबर 25, द पॉइंट नंबर 4 इज एडल्ट प्लांट विद सीड्स. अब यहाँ पे चूंकि सीड की पोलिनेशन हो चुकी है, अब सीड डेवलप करेगा एक न्यू सीड कोन में. सीड्स डेवलप इन द सीड कोन्स. द सीड फॉल टू द ग्राउंड व्हेन द कोन्स ओपन. और जैसे ही कोन्स जो हैं वो मेच्योर होती हैं, ओपन होती हैं, तो जो सीड्स हैं वो ग्राउंड पे फॉल करना शुरू कर देंगे, यानी कि वहाँ से डिटैच हो जाएंगे, उन कोन्स से सेपरेट हो जाएंगे. एंड व्हेन द कोन्स ओपन the seed can become new plants. अब जैसे ही वो नीचे सॉइल में जाके गिरेगा, if it get the right or favorable conditions, it will start its life cycle again. Life cycle length. Some plants can live only for a short time, like desert plants. They grow, flower and make seed over a period of time of a few days. अब यहाँ पे हम लोग लाइफ साइकिल की जो लेंथ है उसको डिस्कस कर रहे हैं कि कोई प्लांट जो है वो उसका लाइफ साइकिल जो है वो कितने टाइम ड्यूरेशन का होता है, उसकी लेंथ क्या होती है. अब यहाँ पे जैसे हमने पॉइंट नंबर 1 डिस्कस किया कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं लाइक डेजर्ट प्लांट्स की हमने बात की कि उनमें फ्लावर्स ग्रो करते हैं और सीड बनता है ओवर अ पीरियड ऑफ फ्यू डेज, यानी फ्यू डेज, विद इन फ्यू डेज ये सारा काम होता है. उसमें सीड फ्लावर बनेगा, उसके बाद सीड बनेगा और सीड दोबारा से अपना लाइफ साइकिल स्टार्ट करेगा, यानी कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम ये लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है. Some plants can live longer than humans do. और कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि इंसानों से भी कई साल ज़्यादा जो है वो ज़िंदा रहते हैं. उनका लाइफ साइकिल जो है वो several years पे जो है वो डिपेंड करता है. So here is a chart given on page number 25 which tells more about the life cycle of a length. So look at page number 25. टाइप्स ऑफ ट्री आपको दिखाया गया. अमेरिकन एल्म है, यहाँ पे एवरेज लेंथ ऑफ लाइफ साइकिल इसकी 175 to 200 ईयर्स है. ब्रिस्टल कॉर्न पाइन है जिसकी 3000 ईयर्स लाइफ साइकिल की लेंथ है.
डॉगलास फिर है यहाँ पे 300 ईयर्स इसका लाइफ साइकिल स्पैन है, एंड रेड वुड जो है वो 500 ईयर्स लाइफ साइकिल स्पैन के साथ हमारे पास मौजूद है। सो दिस इज एंड ऑफ आवर लेसन। अल्लाह हाफिज़।